So, did you all done anything in Lightroom? कुछ like practice or anything? कुछ doubt कल का? मैंने नहीं, डाउट तो नहीं, वैसे मैंने स्टार्ट किया नहीं है क्योंकि बहुत सारा लाइक मेरा फोटोज है ना, Yeah. बहुत डिलीट करना है, Okay. बहुत Okay. आउट ऑफ फोकस, तो वो सब थोड़ा करके देन आई Oh, actually थोड़ा नहीं उतना टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि मैं अभी सुंदरबन से स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिर ज्यादा नहीं लगेगा। okay. सर दिलीप भाई, but मेरे को आपको एक पूछना था। Yeah, please. ये क्रॉप यूज कर रहा था ना, तो उसमें वो रेशियो लॉक करके कैसा छोटा बड़ा करने का? So, I think by default it is unlock, right? हाँ, वो क्या होता है, Yeah. अभी वो जब मैं खींचता हूँ ना तो डायमेंशन चेंज होता है, ऊपर नीचे फ्री क्रॉप जैसा होता है वो। So you have to lock this thing. ये जो है ना मेरे लॉक वाला पार्ट उसको. हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, कल आपने बताया था। ओके, अंडरस्टैंड। एक मिनट. Okay. So I hope मैं ये डेवलप पैनल थोड़ा और फिर से स्टार्ट करूं अगर आप लोग को लगता है तो. चला नहीं, डेवलप का आप आगे जाएंगे तो भी ठीक है। आई थिंक इतना तक तो ठीक से समझाया आपने, अभी समझ में आ गया है, तो अगर आगे जाएंगे तो ठीक रहेगा, राइट? अभी देख लीजिए बाकी लोगों का कैसा है, क्योंकि मैंने ये थोड़ा बहुत किया है करके मुझे थोड़ा मालूम है, ओके. तो बाकी लोगों का राय देख लीजिए। ओके, किसका तो वॉइस ब्रेक हो रहा है. आई थिंक नहीं, वो क्या है, डॉक्टर बैकग्राउंड आवाज। धनंजय काशीकर. डॉक्टर धनंजय. यस यस स्पीकिंग. या आपका वॉइस क्रैक हो रहा था. आई थिंक सो आप कुछ बोल रहे थे. सॉरी. हाँ हाँ, अभी ज्वाइन किया मैंने. या ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू. वेलकम. थैंक यू. Jason is joining in few minutes. मैं उसको बोल देता स्टार्ट कर रहा हूँ. हाँ, श्योर श्योर. So just wanted to tell those people who joined today. This is actually third session of Lightroom. We have the library, how to import, keywording, reject, how to delete the photos, how to select the photos. Then yesterday we finished like what kind of photo we have to keep and what type of photo we have to delete from our system. How to we can those guidelines are shared here. Now I came here in develop panel. So this is the like all editing parts comes here. So so I'm मैं directly with starting from crop panel करता हूँ वापस से, जिससे थोड़ा और clear हो जाए लोगों को. So here's the histogram, and this one is the crop tool. These are the tools we have, and this is the crop one, and spot removal, all these things. I red eye corrections, and these three are very important tools. I think as I told yesterday कि इसमें पूरा एक सेशन जा सकते हैं बिकॉज काफी सीखने लायक चीज है, इसमें काफी ऑप्शंस. ओके, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम क्रॉपिंग. तो ये क्रॉप पे आप क्लिक करो तो ऑलरेडी एक क्रॉप फोटो है. here's the street panel, this one. Okay, so it was like that before. तो मैंने इसको क्रॉप करके यहाँ पे कुछ ऐसे केस. So later, then no, before cropping, I think अब cropping के बाद मैंने इसको white balance करेक्ट किया. So I have shown three or four types of
3 or 4 options कैसे white balance correct करना. So there was like a temperature manual आप करो जैसे आपको जहाँ पे भी ठीक लगे. Then there is a options. By default it will be as short, and then you have select whatever you like. Basically wildlife में auto, daylight and cloudy is best option. All those things are comes in landscape and product photography or modeling or something. But I'll tell you my I consider this thing all three. But my जो सबसे बेस्ट मुझको वाइट बैलेंस के लिए लगता है, आई सर्च फॉर ग्रे स्पॉट. जहाँ पे ग्रे स्पॉट मिलेगा आई फील कि वो सबसे अच्छा वाइट बैलेंस करेक्ट करता है. तो हाउ टू फाइंड दैट ग्रे बैलेंस, ग्रे स्पॉट? आई थिंक कल कहाँ ढूंढा था इसका ग्रे स्पॉट, याद नहीं. somewhere here. So pick this picker and find out some gray area. So can you see a palette? एक बड़ा सा palette आया होगा pointer के नीचे. So there is a red 21, green 21 and B21. So this is the red, green and blue. And यही color combination से हमारा पूरा photo. This is the basic color actually for computer. तो this is the very closest point. अगर आप इसमें move करोगे, if I go to orange area, say the or red is highest, green is second and blue is the last option. So check here also. यहाँ पे navigator में आपको color change होता दिखे जैसे मैं move करूँगा. Right now I'm on orange part, on the bird orange part. So the navigator area, this area, change, completely change. So you can visualize, you can see there कि हाँ यहाँ पे ये कलर ये यहाँ पे चेक करने पे कैसा होगा. So now I'm picking the closest range. So this is the very closest range. Okay. After finishing this white balance करने के बाद I move to crop area. So when we click on crop, it opens a panel. It's property panel, we can say. तो यहाँ पे दिख रहा है original. So original is like whatever your camera जैसा size create करते हो, जो भी उसका size है वो original size होता है. Then when you click here, there's a 1:1 ratio, 4:5, 8.5 by 11. This is a print page, and 4:5 is most popular in Instagram. So 5:7, all these things. Then there is the 4:3, जो हमारा पहले squarish screen होता था, पुराना screen, वो उसका वो type का. Then there is wide monitor type इसमें है. So I'll suggest you mostly you use this 4:5 or 1:1. Or 4:5 is I'm telling because they Instagram पे सबसे ज़्यादा इसका ये prominent काफी होता है, काफी पूरा screen capture कर लेता है. So this is the best size I can say right now for mobile users. 4:3 is the second one, or you can go by original also. ठीक है. So when I'll take Instagram का lecture, then I'll show this one. ये वाला भी. ठीक है. Okay. Then how to crop? There's a lock thing. By default ये open होता है. So when you move this point, see, can you see a diagonal arrow? Arrow पे click करके आप उसे drag करो. So you can like make any type of kind of size, like उसको vertical या squarish या or any kind of. Okay. But if you want to like proportionately इसको छोटा करना है, crop करना है, so just click on this, ये lock हो जाएगा. And see,
now वो proportionately height and width इसको कम करता है, proportionately crop करता है. Okay, so I'll go with this vertical because the horizontal type का image नहीं है. So for to toggle horizontal, I mean portrait to landscape to portrait, press X button in the keyboard. तो जब X button आप press करते हो, so it turns to portrait. Okay. If you want to change the orientation, again press X button. So it change the orientation. So anytime you can change. Okay. So I'm making it portrait type of. Okay. Okay. And I'm satisfied with this size and framing. Uh, so I keep this thing. Okay, then next our part is exposure and this all this thing, contrast, highlight, and all this very important part of editing thing. तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटो भी दिखा हुआ है. So what auto does, like वो पूरा इमेज का कैलकुलेट करता है. Still I don't know about like वो crop को कैलकुलेट करता है या entire image. But it calculate all the things, all the algorithm, and उसको वो उसको हर एक को सेट कर देता है उसका वैल्यूज यहाँ पे. तो हम राइट नाउ मैं ऑटो दिखाता हूँ. सो सी सो ये लाइक वी कैन से एआई जैसे आजकल चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एआई काइंड ऑफ थिंग है. सो ये कुछ कंप्यूटर खुद जनरेट करके ये सॉफ्टवेयर खुद उसको चेंज कर देता था. बट यू नो ये प्रॉपर है नहीं, बर्ड इतना भी वाइब्रेंट नहीं दिखता. सो इट्स better to go manually. Or there is one more option, some kind of auto EO, but I'll show that also. But manual is always good. So I'm resetting this. How to reset that? ये टोन पे डबल क्लिक करो, so it reset. देखा आप लोगों को? ऑटो पे वो ऑटो करेगा. When you want to reset, just double click on tone, तो reset कर देगा उसको. So my steps is like first exposure correct करना है. Already अच्छा exposure है, bit मैं से थोड़ा और इसको exposure उसका correct कर देता हूँ. Okay, so it you know exposure word से समझ में आ गया. पूरा entire image का उसका exposure increase कर देता है. So there's contrast, pixel contrast increase होता है. Better don't go far away. If you increase 100%, say वो वैसे ऑटो जैसा इफेक्ट दे रहा है. इट इज नॉट नेचुरल एंड इट इंक्रीज द नॉइज आल्सो. तो बेटर टू स्टिक मिनिमम कॉन्ट्रास्ट एंड ऑटो. तो यू कैन गो माइनस आल्सो, बट ये थोड़ा सॉफ्ट करते जाएगा धीरे धीरे. कैन यू सी यहाँ पे थोड़ा उसको पूरा उसको सॉफ्ट कर दिया, वहाँ पे ब्लैक पूरा निकाल दिया. So it is, I'll go around 10 for this image. Then there's a highlight, shadow, white and blacks. What is highlight here? आप लोग को थोड़ा एक बेसिक चार्ट बताता हूँ मैं. वो white and blacks के लिए. So highlights is like ये जो पार्ट है यहाँ पे, and this area and this one, ये पूरा highlight के अंदर आता है. This part. So यहाँ पे पूरा details नहीं है. तो so to record those details, reduce the highlight. Okay, see. Can you see that? दिख रहा है? यहाँ से का पूरा उसने हाईलाइट्स निकाल दिया. तो ये जो भी पिक्सेल्स में ग्लोइंग पार्ट होते हैं वहाँ का, उसको सॉरी ओके.
एंड द शैडो वन, इस इमेज पे प्रॉपर शैडो आपको समझाएंगे। मैं दूसरा एक इमेज लेता हूँ जिसपे प्रॉपरली आप क्लियर हो जाए। सो हियर सी, यहाँ पे हाईलाइट्स हम लोग को अच्छा समझ में आएगा। दिस एरिया जो जो ब्राइटेस्ट एरिया है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज हाईलाइट, एंड दिस डार्क पार्ट, ये डार्क पार्ट को अप करने के लिए दिखाने के लिए यहाँ पे उसको शैडोज अप करिए। सो इट, बट इतना भी नहीं कि वो नॉइजी हो जाए। इट्स बेटर टू लाइक increase some bit, दिख रहा है। now this is the previous one and here's the latest after adding reducing highlight and adding some shadows. See, here's the difference. Okay, the next is like उसमें मैं आता हूँ वापस से। व्हाइट भी नहीं है इसमें। It's better to select some other photo. इसमें white का भी presence कम है and white and black. So this, I think this is an ideal image. वो एक particular दूसरे part के लिए use कर सकते हो image. So here's the highlight part. ये वाले जगह, तो ये इसको reduce करके कैसे यहाँ पे देख रहा पूरा उसका highlights कम होगा. And this area is very dark area. So shadow इसको up करने के लिए use the shadow. So it comes, तो ये पूरा उसको विजिबल कर देता हूँ, वहाँ का शैडो को रिड्यूस कर देता हूँ वहाँ से। Then there is a white part. They have just actually white overall images को apply कर देता है. Like it adds some it can say exposures, but don't go far away. So there is a thing कि इसको कैसे कितना measure करना है, कैसे करना है. So press Alt key. Press Alt key and I'm resetting again. This. So if Alt key press करने के बाद उसको increase करो, bright करते जाओ to get the good detail of image. यहाँ पे एक आपको white and blue करके blue colors दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे white and black blue. When I click, so this is like from here उसका detail loss होना शुरू हो जाता है. So basically this indicate like don't go after this. यहाँ से आपका जो भी डिटेल है white डिटेल वो लॉस होते जाएगा. Okay, so मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ यहाँ पे.
यानी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं है। सो प्रे होल्ड ऑल्ट होल्ड करने के बाद आपको क्लीन इंडिकेट करता है कि कहाँ तक आपको जाना है. So it adds good amount of lights over here in image whites, and similarly black में भी अगर आपको कौन से रेंज तक जाना है you can find out by pressing Alt key and drag to negative. See यहाँ पे जैसे वो थोड़ा सा ब्लैक एरिया दिखना शुरू होता है, दैट मीन्स यहाँ से आपका डिटेल लॉस होना शुरू हो रहा है इमेज में. So better to stop before that. Okay, this is the area. यहाँ पे था वो ये part. I'm again holding Alt and this thing. Okay. So this is the area. यहाँ पे उसका तो आपको जैसे ही वो indicate करना शुरू करता है, this is called clipping. जैसे ही indicate करना शुरू करता है वो stop there. That means यहाँ से आपका वो डिटेल लॉस होना शुरू हो जाएगा. आपको वहाँ पे डिटेल कुछ भी नहीं मिलता है. Okay. Then texture. This is very new features added by Adobe Lightroom. Again, ये जो textures को बढ़ाने के लिए use होता है. But adding this thing, texture, clarity and contrast, जितना आप उसको ऐड करेंगे वहाँ पे noise भी बढ़ते जाएगा. So better to use very minimal जितना भी होता है. And clarity like something like sharpness ही है. अगर आप इसको बढ़ा के देखो तो इट्स लाइक 3D को इमेज काफी पिक्सलेट कर देते हो. सी कुछ 3D जैसा लुक आ गया. मैंने इसको 100% किया. इफ आई गो टू माइनस इट ब्लर्ड आउट एवरीथिंग. So it's kind of sharpness thing, but better to use this texture, clarity and contrast very minimal. तो आपको इमेज को अच्छा रखे. Then there's a dehaze. Dehaze आप लोग ने देखा होगा, जैसे आज मैंने एक फोटो पोस्ट किया था उस वाला कौन सा dark breasted rose fins. So that was clicked in haze. So basically ये landscaping में यूज होता है. वहाँ पे हेज रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा रहता है. प्लस से रिच कलर दे देता है हेज रिमूव करके. सो अगेन आई टेल यू ये पार्ट भी आपको बहुत मिनिमल यूज करना है. अगर आप इसको बढ़ा के करोगे तो से वो वहाँ से पूरा जो वाइट पिक्सेल्स रहता है, वाइट एंड ब्राइट पिक्सेल्स, उसको रिमूव कर देते हैं वहाँ से. I mean to say mid tones को रिमूव कर देता है और वो ब्लैक को ज्यादा वाइब्रेंट कर देते हैं. यहाँ पे वाइब्रेंट मींस उसको इंटेंसिटी बढ़ा देता है. सी यहाँ पे आपको देखना है. तो best this haze and texture is better for portrait and landscape. से अगर मैं texture रिमूव को लिस्ट करता हूँ तो थोड़ा blurry कर देता है. So you can use this texture in smoothing the skin portrait में. और आपको क्लाउड आपने लैंडस्केप खींचा तो वहाँ पे क्लाउड्स को ब्लरी थोड़ा दिखाना है, सॉफ्ट दिखाना है, तो एंड दैट टाइम यू यूज दिस. इसको माइनस में यूज कर सकते हो ब्लरी दिखाने के लिए. Okay. So more you all do more experiment on this part, only this part. तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा. एंड these are very minimal. ओके. कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि एडिटिंग में जो कर रहा हूँ ठीक है नहीं है. और तो क्या करना है, यहाँ पे लाइटरूम में एक ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ. और अगेन तो मैं इसको रीसेट करता हूँ. ओके, सिंगल रीसेट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करो, रीसेट होते जाएगा. ओके, एंड एंटायर पैनल को रीसेट करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस टोन, वो पूरा रीसेट. सो आई एम टेलिंग यू कि लाइटरूम में और एक ऑटो टाइप का ऑप्शन है, बट एक इंडिविजुअल ऑटो है. लाइक हमने ऑटो किया तो पूरा एंटायर पैनल को उसने कलर सेटिंग्स चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू इमेज, वो पूरा चेंज कर देता है. हम लोग एक बार फिर से इसमें ऑटो करके देखते हैं कैसा दिखता है. सी ओके, ये ऐसे दिख रहा है. मैं इसका वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ एक बार.
प्रिंट स्क्रीन करके कॉपी कर लेता हूँ। ओके ठीक है। सो अगेन इन लाइटरूम रिसेट करता हूँ। सो सपोज आपको इंडिविजुअली इसको ऑटो करना है, उसे ऑटो सेटिंग करना है, तो जस्ट होल्ड ऑन शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन इंडिविजुअली। लाइक अभी मैं एक्सपोजर पे क्लिक कर रहा हूँ शिफ्ट की प्रेस करके, सो इट कम्स, वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा इमेज का कैलकुलेट करके। देन अगेन कॉन्ट्रास्ट पे ओके, सेम हाइलाइट्स पे क्लिक करो, सो इट रिड्यूस द माइनस में आ गया स्लाइडर, and the same shadow पे, so it increase, open up the image again white, okay, hold on shift and it reduce the black, okay. So मैंने दिखाया आपको कि ये ऑटो और इंडिविजुअल शिफ्ट करने पे, मतलब ऑटो करने पे पूरा चेंज कर देता है, एंटायर इमेज का कैलकुलेट करके वो फोटो को एनहांस करता है। बट जब आप शिफ्ट यूज करते हो इंडिविजुअली, तो वो पर्टिकुलर फाइंड आउट करता है कि कितने जगह पे हाईलाइट्स है और हम लोग को उसको कितना दिखाना है। सो ऑटो और इसमें काफी डिफरेंस होता है। आपको वो वैल्यू दिखाता हूँ मैं, इट इज ऑलमोस्ट सेम बट इमेज टू इमेज चेंज होते रहते हैं। मैं काफी टाइम इसको एक्सपेरिमेंट किया हूँ, मेनी टाइम्स इंडिविजुअली शिफ्ट करने पे ये एंटायर डिफरेंट वैल्यू देता है, ओके। बट आई प्रिफर टू गो मैनुअली जितना हो सकता है। सो आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ रहेगा, अगर क्लियर नहीं है तो फिर भी बताओ ये वाला पैनल, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने देखता हूँ इसको। ओके, देन देयर इज अ वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। वाइब्रेंस पूरे मिडटोन्स के कलर्स को इंक्रीज करता है, जितने भी यहाँ पे मिडटोन्स कलर है वहाँ पे इसको इंक्रीज करेगा। मिडटोन्स इज लाइक ये जो हम लोग ने अभी 50% ग्रे फाइंड आउट किया था, दैट इज कॉल्ड मिडटोन्स। सो इट इंक्रीज देयर वैल्यू। ये जब हम लोग इस पे क्लिक कर वाइब्रेंस करते हैं तो इट इंक्रीज देयर वैल्यू से ऐसे। तो अगेन इसको भी आप मिनिमली यूज करो, डोंट गो फार अवे, एंड इफ यू फील कि हाँ वाइब्रेंस ठीक है बट थोड़ा सा इसको लाइट करना, तो यू कैन यूज सैचुरेशन इन माइनस, और इफ यू वांट टू मोर वाइब्रेंट और वांट टू बी मोर वाइब्रेंट, तो थोड़ा इसको इंक्रीज कर दो, ओके राइट। then there's a tone curves. Tone curves is like it's like an additional thing जो हम लोग ने बेसिक में किया है टोन्स वाले पार्ट को, वही हम लोग का ये टोन कर्व्स में भी आता है, बट इट गिव्स एक्स्ट्रा फीचर लाइक हम लोग इंडिविजुअल कलर्स को ब्राइट या शैडो अप कर सकते हैं या ब्राइट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैक इंक्रीज कर सकते हैं उसमें। सो आई थिंक आप लोगों के इसमें ना ऐसे कुछ दिख रहा होगा टोन कर्व्स क्लिक करने पे, जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग, यहाँ पे क्लिक कुछ करोगे एक बार तो बोलना दिलीप भाई। हाँ एक मिनट, ये टोन कर्व्स पे क्लिक करना है एक बार। ओके तो टोन कर्व्स व्हाट इट इज सिमिलर लाइक दिस पार्ट, हम लोग ने जो ये काम किया, ओके हाँ, ऑरेंज वेरिएंट्स ऑफ बेसिक कलर्स पैनल, होते yeah, so this is the another tool where you can increase the again and increase highlights and lights and dark and this shadows। मैं यहाँ पे माउस और करता हूँ तो देखो यहाँ पे नीचे शैडो लिख के आता है, ये तो इस पार्ट में दिख रहा है आपको।
So this is the black part and this is the white part. So right now I'm increasing this thing. तो जैसे मैं increase कर रहा हूँ तो ये more this is the highlight area. So it increases the highlights. Again मैं black में जाता हूँ. This is the shadow part. जब मैं इसको increase करूँगा, so it adds more white in that. It brighten up. Like जैसे मैंने बोला ये white है and this is black. So similarly इधर ये white में consider होता है और ये black में consider. So I'm moving it to up, moving to white part. तो इससे वो पूरा उसको white convert करते जाता है. Can you see image में changes यहाँ पे आ रहे हैं? Okay. और यहाँ पे भी स्लाइडर चेंज हो रहा है. If you want to उसको डार्क करना है, then move to downwards. So उसे black करते जाते हैं. So it is another thing जहाँ पे आप उसको इमेज को ब्राइट करना है या शैडो अप करना है या उसे डार्क करना है, हाईलाइट ऐड करना है. So you can do from here also. But here ये और एक ऑप्शन देता है actually. If you want to increase individual color like the basic color red and green blue, you can increase that also. तो उसको भी आप उसको bright कर सकते हैं, dark कर सकते हैं. So how to do that? यहाँ पे मैं बताता हूँ. तो click on this icon. Can you see? एक छोटा सा icon है. Click to edit point curve. Okay, click on that. It convert to free form. Like आप उधर points add करके इसको change कर सकते हैं. And it shows one more panel tool here RGB. एक drop down add कर दिया है. Previously वो नहीं था, आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा. जब आप इस पे क्लिक करोगे, this icon पे, तभी ये RGB दिखेगा. तो right now it is RGB, तो all values पे वो इफेक्ट करता है यहाँ पे. Okay, if you want to increase only red or green or blue, then click on here and say red. तो ये पूरा रेड कलर टोन जो भी है आपके इमेजेस में, तो ये यहाँ पे रेड टोन है ये पर्टिकुलर पार्ट में, या यहाँ पे this area has red tones. If I increase here, तो उसको बढ़ा दिया, दिखा. So you can adjust your images by this curves too. आप इंडिविजुअल कलर्स को भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हो. So hypothetically मैं इसको बड़ा के दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए कि ये चीजें कैसे वर्क करते हैं. एकदम then you can add green more. green में अगर आपको ऐड करना है कुछ लाइट्स, this area is for shadow, highlights, then white. तो and this is the darkest area जो रहेगा green का, वहाँ का उसको ऐड करेंगे. See, आप यहाँ पे नोटिस करना है ये डार्क है, ग्रीन है. So I'm increases this black part वाला डार्क एरिया, तो वो वहाँ का कलर चेंज किया. So these things helps in individually करना रहेगा किसी कलर को टोन या उसका ब्राइटनेस उसको करना रहेगा, तो उसके लिए यूज होता है. So मैंने तो अभी अपवर्ड्स जाते दिखा है, मैं इसमें कलर ऐड कर रहा हूँ. If there is one more option जो hidden है, like if you know that RGB का opposite color भी है यहाँ पे. So red is like मैं एक चार्ट में दिखाता हूँ. चार्ट. Okay. So here's the chart. यहाँ पे black है and 10% इसको reduce करते हैं मैंने यहाँ पे. So I'm showing here ये कैसे work करता है. Right now this is RGB and ये white part है. So I'm increasing this. तो जो already यहाँ पे है white, उस पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा, but यहाँ पे जो white added है इन सब एरिया में, उसको वो बढ़ाते जाते हैं. ठीक है.
सो एंड इस ये अब ये एरिया ब्लैक एंड शैडो का है, सो आई इंक्रीज दिस आल्सो, तो यहाँ पे उसको और भी इंक्रीज कर दिया। एंड चेक मिड टोन्स को उसने थोड़ा न्यूट्रल रखा है, ये दिस एरिया इज मिड टोन्स। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी मैं इसको इंडिविजुअल कलर करने बताता हूँ मैं, रेड एंड ग्रीन कैसा वर्क करता है, उसका अपोजिट कलर्स क्या है। रिमूव करने के लिए जस्ट डबल क्लिक एंड डबल क्लिक हियर, तो इट रिमूव्स। ये व्हाइट है, इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो इसमें से पूरा व्हाइट रिड्यूस कर रहा है इसको, एंड इट टर्न्स टू ब्लैक, तो यहाँ पे पूरा ब्लैक ऐड हो गया है। मैं इसे फिर से ऊपर ले रहा, तो ये व्हाइट उसमें ऐड हो गया। एंड सिमिलरली ये ब्लैक है, ब्लैक में यहाँ से रिमूव करा, सो ये पूरा उसको व्हाइट कर रहा है। सो दिस इज ये इसका फंड है यहाँ पे। एंड अगेन ये पूरा आरजीबी था, तो ये हर एक कलर वैल्यू पे वर्कआउट कर रहा था। नाउ आई एम सेलेक्टिंग रेड कलर, तो व्हेन आई इंक्रीज फ्रॉम हियर, तो ये सब ऐड करते जा रहे हैं। दिस इज द इट्स एडिंग रेड कलर, ओके, everywhere from white to dark area. If I go to negative part, then red का opposite जो color है, this cyan color, it adds cyan color here. So when you say आपका cyan color है किसी जगह पे, तो उसको अगर आपको highlight करना है तो you can go from here also. And similarly green का opposite है magenta, so it adds magenta when you moving down, okay, and when you up, तो इसका ये green ऐड करना। तो आप बेसिकली ये सब लैंडस्केपिंग एंड में काफी यूज कर सकते हैं इसको। बर्डिंग में थोड़ा कम ही यूज हुआ तो चले, बर्डिंग में सिर्फ आरजीबी डायरेक्टली यूज करिए। एंड देन ब्लू का अपोजिट है, दिस इज गोइंग एडिंग ब्लू इन ऑल ओवर, एंड ब्लू का अपोजिट है येलो, ओके। So these curves can be more handy in landscape. I prefer. Okay. Then there's HSL also. HSL मैंने बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर बताता हूँ। I have मोनाल का फोटो जिसमें ना काफी सारे कलर्स हैं, and it become very handy for that one. Okay. See here. राइट नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ दिस पैनल। हाँ, अगर आपको कोई पैनल को तो इफेक्ट नहीं दिखाना तो जस्ट क्लिक ऑन दिस टॉगल बटन, तो उस पर्टिकुलर को वो ऑफ कर देगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, बाय डिफॉल्ट आपके पास ये पैनल समथिंग ऐसा कुछ होगा, समवेयर इतना छोटा होगा, ओके। तो व्हाट हैपन जब आप कुछ एडिट करते हो तो इट्स जंप लाइक 5:5 का रेशियो पे जंप करेगा। सपोज मैं इतना रखा हूँ, सो व्हेन आई मूव दिस तो इट जंप वेरी फास्ट। तो स्लाइडर को वेरी मतलब एक एक पॉइंट पे जंप करने के लिए आपको इसको बढ़ाना होगा, इस पार्ट को पैनल पे। सो इंक्रीज दिस पैनल टिल एक मैक्सिमम एक लेंथ तक जाता है, वहां तक आप इसको इंक्रीज कर दो, ओके। So this HSL part is very handy in this such kind of photos. Uh, you know this Monal has multiple color. तो क्या होता है कि वो इंडिविजुअल कलर को अप करने में काफी टाइम चला जाता है, ओके। तो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस HSL पैनल। राइट नाउ ये ऑफ है, मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो आप देखो कितना डल इमेज दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है। हाँ, बीच में ब्लैकआउट हुआ था। सो राइट नाउ एक मिनट, ओके।
This is without HSL affected. अभी मैंने HSL ऑफ कर दिया. ये HSL मैंने ऑफ किया है. So you can see that images बहुत dull लग रहा है अभी. तो this kind of photos आप उसमें like suppose यहाँ पे काफी सारा flowering होता है, leaf होता है, तो आप उसको भी उसको ह्यू सैचुरेशन से उसको एनहांस कर सकते हैं इंडिविजुअल कलर. बट अगेन एज आई सेड कि हर एक चीज को ना बहुत केयरफुली आपको ऐड करना पड़ेगा. कहीं पे भी इधर उधर आपका एक दो स्लाइडर यहाँ ऊपर नीचे ज्यादा हो गया, सो इट गिव्स वेरी अननेचुरल इफेक्ट. तो बेटर है उसको थोड़ा क्लेवरली बहुत ही संभल के यूज करना है. मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे क्या होता है. तो राइट ना मैं इसको रीसेट कर देता हूँ पूरा. अगेन रीसेट करने के लिए वैसे ही डबल क्लिक करो इंडिविजुअल और पैनल पे, रीसेट इट. थोड़ा स्लो चल रहा है पीसी. ओके सर मैंने रीसेट कर दिया था. So suppose if you want to add some more color on this part, on this blue part, उसके फिगर में. So here's the cyan and here's the blue to magenta. You can say purple color. तो suppose मेरे को ये बढ़ाना है. If I increase this thing to here, see, can you see? पूरा चेंज कर दिया. बट यहाँ पे हम लोग को ब्लू दिखा रहा है. Why? Because ये at the end ये आते आते वो पर्पल हो गया. और उस look at this here. यहाँ पे रेड है and this is some orange. And then यहाँ से orange start होता है. Then it turns to yellow, then to green. Then again orange, yellow, green, and this is lemon green. तो ये इसी पैनल में 3-4 कलर ऐड होते हैं. तो माइन्यूटली उसे बढ़ाना होता है. So that's why I use this thing. अगर मुझको इसको ब्लू करना है, I will not go to till here. मैं थोड़ा सा उसे इंक्रीज करूंगा. Okay, if I want to add this orange to be enhanced, then I'll pick this one. Okay, थोड़ा सा हो गया. Then I want to increase this also. Okay, so this with the Excel panel you can change the individual color. Again मैं यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे भी इफेक्ट कर रहा हूँ इन सब जगह पे. Let's increase the yellow and green color. Okay. थोड़ा स्लो इफेक्ट हो रहा है एक्चुअली. हाँ. See this area, ये जो ग्रीन है उसको पूरा उसने येलो कन्वर्ट कर दिया. चेक, ये पूरा उसको मैंने इसको मैक्सिमम किया तो पूरा से ग्रीन एंड मोर रेडिश एंड येलोइश कर दिया उसको, जो अननेचुरल लग रहा फील आ रहा है यहाँ पे. सो अगेन इसको आप लोगों को थोड़ा एक मिनिमल रेंज तक ही उसे इंक्रीज करना है. Okay, next is saturation.
Saturation is like जो भी most saturated part है उसको I mean जो भी है saturation उसको increase करना है उसके gray out करना है, then you can do from here. Like I want to add more some orange color here and this part, so you can go from here also. Okay, these things. Okay. And there's luminance उसमें white add कर देगा वो जो भी part है, like this monal is not glowing, so I'm adding some luminance here. So in blue I'm moving towards to white part. So check it. So it added white and it's glowing. Right now it's glowing. So again it's little unnatural this part जो purple दिख रहा है. So I'm reducing this color from hue. Yeah, from here it reduced. Okay. So see right now ये पूरा मोनाल का जो कलर है पूरा वाइब्रेंट हो चुका है इसके just because of this panels. आप इसको फिर से हम लोग इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं. This is the previous one before, and when you applied this one, yeah, can you see effect काफी change हो गया यहाँ पे. Okay. Okay. Detail. ये सबका लुमिनेंस अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं क्या? ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ाना है तो कैसा करते हैं? से ओवरऑल कलर्स का ब्राइटनेस बढ़ाना तो लुमिनेंस से कर सकते हैं, बट थिंग इज लाइक आपको वो नेचुरल दिखना चाहिए, अननेचुरल नहीं लगना चाहिए. अगर आप काफी इंक्रीज कर देते तो बट ओवरऑल सपोज ब्राइटनेस बढ़ाना है, ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ाना तो फ्रॉम हियर यू कैन ऐड एक्सपोजर और वाइट all this thing, or by curves you can increase the brightness. वो जैसे वो बताया था मैंने. It's running loose actually. बिकॉज़ वो निकॉन में कैसे ब्राइटनेस का अलग से आता है ना टूल, इधर ऐसा है नहीं ना. लाइक हाँ मेरे को समझा नहीं. नहीं ब्राइटनेस ऑफ इमेज अगर बढ़ाना है तो कैसा बढ़ाते हैं? तो ब्राइटनेस इमेज का ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए यो मतलब उसको सैचुरेशन बोल रहे हैं या ब्राइट करना है उसे पूरा? ब्राइट करना है. तो फ्रॉम एक्सपोजर यू कैन डू दैट. यहाँ से एक्सपोजर से भी ऐड हो जाएगा. ओके. एक्सपोजर से ऐड हो जाएगा. देन यू कैन डू फ्रॉम हियर वाइट्स ऐड करना है तो उसमें वाइट करो, एंड फ्रॉम टोन से भी उसको आप उसका ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो. टोन फ्रॉम हियर. अच्छा एक आपको पूछना था दिलीप जी, पहले हम लोग ने जो एडजस्टमेंट्स किया ना सब बेसिक में, तो वो जो एडजस्टमेंट्स और बाद में जो नीचे का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो